تلنگانہ ہائی کورٹ نے 3 جون تک قانون ساز کونسل پر انتخابات کے لیے اعلامیہ جاری نہ کرنے کی مرکزی الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں 3 ارکان قانون ساز کونسل کو نااہل قرار دینے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزاروں بھوپتی ریڈی، یادو ریڈی اور راملو نائک نے انہیں رکنیت سے نااہل قرار دینے کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی تھی۔ واضح ہے کہ 16 جنوری کو تینوں ارکان کے خلاف یہ کہتے ہوئے کارروائی کی گئی کہ انہوں نے انسداد انحراف قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کانگریس میں شمولیت اختیار کی ہے۔ صدر نشین کونسل کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے تینوں ارکان نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس معاملے پر اگلی سماعت 6 جون کو ہونے ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نیا سیکھتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا نام ہی زندگی ہے، اور یہ کہنا ہے نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو کا۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ علاقے میں جوہری توانائی کے ریسرچ شعبے کے قیام کے 70 سال کی تکمیل پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں وینکیا نائیڈو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اپنے خطاب کے دوران وینکیا نائیڈو نے سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی، ان کے کام کی بے حد ستائش کی۔ وینکیا نائیڈو نے زرعی شعبے پر بھی خصوصی توجہ دینے کا زور دیا۔ Everybody should go on learning because the world is changing faster. New opportunities, new challenges, new ideas, new situations are all coming now. Where was solar earlier? Now solar has become a major. Rainwater harvesting. It was there long back, died in between and again. And then now environmental issues. Earlier we used to take care of nature, nature used to take care of us, no problem. We disregarded the nature. Nature is showing its fury. So again, there are so many. So everybody should go on, learn before you start to yearn. بی جے پی اور کانگریس کے بغیر علاقائی پارٹیاں مرکز میں حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ سی پی آئی کے قومی سیکرٹری سورارم سدھاکر نے یہ بات کہی۔ حیدرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران سی پی آئی لیڈروں نے بی جے پی کے خلاف قائم ہونے والے اتحاد کی تائید کرنے کی اپیل کی۔ ساتھ ہی سی پی آئی لیڈروں نے کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ 5 سال تک بی جے پی کی تائید کرنے والے کے سی آر اب فیڈرل فرنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ فیڈرل فرنٹ کو کسی بھی علاقائی پارٹی نے قبول نہیں کیا ہے۔ انہوں نے مغربی بنگال میں موجودہ حالات پر افسوس کا اظہار کیا۔ యూపీఏ వైపుకు పోయే అవకాశం ఉన్నా లేక యూపీఏకు అనుకూలంగా ఉంటారనుకున్న పార్టీలు, యూపీఏలో ఉన్న పార్టీలు వారిని చీల్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప నిజంగానే స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిగా అన్ని పార్టీలను చీల్చడానికి, అన్ని పార్టీలను యునైట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయట్లేదు. అందువల్లనే ఆయన లేవనెత్తుతున్నటువంటి అంశాల మీద వామపక్షాలకు రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ కలవటం మీద మాకు అభ్యంతరం లేదు. ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ కలిసి యునైటెడ్ ఫ్రంట్ లాంటి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినా అభ్యంతరం లేదు. انٹرمیڈیٹ نتائج میں بے قاعدگیوں کے خلاف سی پی آئی کی جانب سے حمایت نگر سے ٹینک بنڈ تک ریلی نکالنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ سی پی آئی کارکنوں نے انٹرمیڈیٹ رزلٹ پر تلنگانہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سی پی آئی لیڈر نارائنا نے الزام لگایا کہ حکومت کے کارپوریٹ اداروں کے مفاد کو ترجیح دی گئی ہے۔ بڑی تعداد میں طلبہ نے خودکشیاں کی ہیں۔ انہوں نے طلبہ کی خودکشیوں کے لیے حکومت کو ہی ذمہ دار قرار دیا۔ سعودی عرب میں پھنسے تلنگانہ کے ایک نوجوان کو ملک واپس لانے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ ایجنٹ کی دھوکہ دہی کا شکار تلنگانہ کے علاقے سرسلہ کا 21 سالہ محمد سمیر چند ماہ قبل سعودی عرب روانہ ہوا تھا۔ اس نوجوان کو کسی فنکشن ہال میں ملازمت کا جھانسا دیا گیا، لیکن جب یہ نوجوان سعودی عرب پہنچا تو وہاں پر اس کو بھیڑ بکریوں کی افزائش کی ذمہ داری دے دی گئی۔ پریشان حال محمد سمیر نے انہیں بچانے اور ملک واپسی میں مدد کی اپیل کی۔ اس پر ٹی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سعودی عرب میں ہندوستانی سفیر اوصاف سعید اور ریاض میں ہندوستانی سفارت خانے کو ٹویٹ کیا اور اس کے بعد
हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने KTR के ट्वीट पर जानकारी दी कि वो मोहम्मद समीर से रब्त में है। बहुत जल्द मोहम्मद समीर को मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। సిటీలో పని చెప్పి ఫామ్ హౌస్లో ఉండాలని వాళ్ళకు అరబ్ వాళ్ళు వస్తారు వాళ్ళతో ఉండాలని చెప్పినా ఆ నుంచి నన్ను 1200 కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చి నన్ను గొర్రెలుగా రమ్మలని లేచినా ఇగో ఏం లేదన్న గొర్రెలు కాస్తున్నాయి ఇగో వారాలు షార్ట్గా వచ్చి మెసేజ్ పెడుతున్నా 83,000 రూపాయలు తీసుకుని నన్ను మోసం చేసినా నాకు 1200 జీతం చెప్పిండు నాకేం లేదు ఇక్కడ నాకు తిండి లేదు సగం తిండి ఇస్తలేరు నేను పోతానా పనిది కాదంటే కొడుతురానా ఇంటికి పోతా అంటే తంతుర్రు కొడుతురానా 20 రోజులే బరాబర్ తిండి లేక ఇక సాటుగా వచ్చి మాట్లాడితే ఏం లేదన్న ఇక అంతరా మరి ఎవ్వరు లేరన్న ఒక్కనే ఉంటారు ఆయన అన్న నన్ను మీరే తీసుకోవాలన్నా। मुक़द्दस माह रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म हो चुका है। अब रोज़ेदार दूसरे अशरे की इबादतों में मसरूफ़ हो गए हैं। माह रमज़ान की पहली तारीख से हैदराबाद के इलाके बोराबंडा में रोज़ेदारों के लिए सहरी का ख़ास इंतज़ाम किया जा रहा है, जो कि ख़त्म रमज़ान तक जारी रहेगा। डिप्टी मेयर GHMC बाबा फसीउद्दीन की क़यादत में सहरी का ये इंतज़ाम किया जा रहा है। इसमें मकामी हिंदू भाई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मकामी हिंदू भाई रात भर पकवान की तैयारी करते हैं और फिर रोज़ेदारों को सहरी के लिए खाना पहुंचाते हैं। मीडिया से बातचीत में डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने कहा कि बोराबंडा इलाका गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है। వాళ్ళకి సేవ చేయడానికి వాళ్ళు స్వతహాగా హిందూ సహోదరులు వచ్చి ఈ యొక్క సేవలో వాళ్ళు పాల్గొని రాత్రి 12 నుంచి మొదలుపెట్టుకొని పొద్దున ఆ ముస్లిం సహోదరులకు అన్నం వడ్డించే దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటే కూరగాయలు తరిగే వరకు కూడా చివరకు వాళ్ళకు అన్నం తిన్న తర్వాత ఆ యొక్క ఇస్తరాకును కూడా వాళ్ళే తీయటం చాలా గొప్ప విషయం। ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పడం ఏ విధంగా అయితే మేము నవరాత్రులు దీక్షలో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఆ దీక్షలో ఉన్న వాళ్ళకు సేవ చేసుకుంటే పుణ్యం దక్కుతుందో అదే విధంగా రంజాన్ శుభమాస సందర్భంగా 30 రోజులు ఏవైతే ముస్లిం సహోదరులు దీక్షలో ఉంటారో వాళ్ళకు సేవ చేసి ఆ యొక్క పుణ్యాన్ని సంపాదించుకున్నామని వాళ్ళు ముందుకు రావడం హిందూ సోదరిమణులు చాలా గొప్ప విషయం। वरंगल में यौम कौमी डेंगू के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। काकतिया मेडिकल कॉलेज से MGM चौराहे तक रैली निकाली गई। रैली को अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट हरीश राज ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अवाम में डेंगू से मुताल्लिक जानकारी फराहम की गई। साथ ही अपने इलाकों के आसपास उनको साफ सुथरा रखने और पानी की जमा न करने की अपील की गई। साथ ही मच्छरों से खुद के बचाव पर जोर दिया। वहीं मेदक में भी यौम कौमी डेंगू के मौके पर म्युनिसिपल ऑफिस से जिला मेडिकल ऑफिस तक शऊर बेदारी रैली निकाली गई। रैली को DMHO ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। इस मौके पर अपने आसपास के इलाकों को मच्छरों से पाक रखने पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में जिला सिंगारेड्डी के मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। जिला सिद्दीपेट में एक आशिक जोड़े ने शादी के लिए वालिदैन की जानिब से रजामंदी न देने पर खुदकुशी कर ली। कनकिया और तारा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। दोनों का ताल्लुक अलग अलग तबके से था। इस मामले पर मकामी अफराद ने जब कनकिया को 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया तो दोनों ने गवर्नमेंट स्कूल में सीलिंग फैन से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिला रंगारेड्डी के कोडल यचारम मंडल में गुज़िश्ता कई दिनों से चीते की मौजूदगी की इत्तला से मकामी लोग खौफ हिरास में थे। कल फिर चीते ने एक गाय पर हमला किया। बताया जाता है कि करीबी जंगलाती इलाके से पहले भी जंगली जानवर आवाम पर हमला करते रहे। मकामी लोगों ने हुकूमत से इस चीतों को पकड़ने की अपील की है। फौजी पुलिस, NIA और रेलवे ऑफिसर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुरु विनोद कुमार रेड्डी के कब्जे से एयर पिस्टल, कई इदारों की रबर स्टैंप, आई कार्ड्स, लैपटॉप, NIA की डायरी और 6 सेल फोन जब्त किए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि विनोद ने खुद को NIA का एडिशनल SP और दीगर महकमों का ऑफिसर
बताते हुए कई लोगों के साथ धोखा किया। जांच के बाद कई मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि मुलजिम ने सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में नाकामी पर खुद को ऑफिसर जाहिर करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया। फेक आर्मी ऑफिसर, फेक पुलिस ऑफिसर, फेक NIA ऑफिसर, फेक रेलवे ऑफिसर, ये सब फेक आइडेंटिटी बनाकर करनाती गुरु विनोद कुमार रेड्डी एलियस विनोद, आज इसका अरेस्ट हुआ। और इसके अरेस्ट से इसके पास से एक एयर पिस्टल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के फेक रबर स्टैंप जिसमें NIA का रबर स्टैंप, आइडेंटिटी कार्ड, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरी, लैपटॉप, आईपैड, DMS मिलिट्री शूज, बाइनाकुलर्स, हाई डेफिनेशन प्रोजेक्टर और 6 सेल फोन का रिकवरी हुआ। ये गुरु विनोद कुमार रेड्डी अभी फिलहाल फ्लैट नंबर 207 पुरुषोत्तम अपार्टमेंट नियर गोलकोंडा क्रॉस रोड हैदराबाद में रहता है और ओरिजिनली SA काशी नयना मंडल YSR कड़पा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, और लास्ट में जो इसका आइडेंटिटी था वो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस NIA का फेक आइडेंटिटी के साथ ये घूम रहा था। केसेस अगेंस्ट हिम, ऑल द केसेस shows that he was trying to cheat people by fake identity. इन्वेस्टिगेशन लो, अन्नी पॉइंट्स बाइट की वजह से डिटेल लो। चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडरों की शिकायत पर एक्शन लिया जा रहा है, जबकि TMC लीडरों की शिकायतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट के जरिए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी लीडरों की तमाम गलतियों को छुपा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी जा रही है, जबकि दीगर लीडरों के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि मुल्क में जमहूरियत का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर में रीपोलिंग के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन ने अहकामात जारी कर दिए हैं। चंद्रगिरी असेंबली हल्के के अलावा चित्तूर हल्का पार्लियामेंट के 5 पोलिंग बूथ्स पर दोबारा रायदही होने वाली है। 19 मई को इन 5 मुकामात पर सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज होना है, जो कि शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी कि रियासती रिटर्निंग ऑफिसर को तफसीलात फराहम की गई हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तेलुगुदेशम कारकुनों में तिरुपति के सब कलेक्ट्रेट पर एहतजाज किया और इलेक्शन कमीशन पर जानिबदाराना फैसला करने का इल्जाम लगाया। तेलुगुदेशम लीडरों ने कहा कि पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को कई मरतबा रीपोलिंग की अपील की गई, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी और YSRCP की अपील रद्द कर दी गई। తారీఖు నుంచి ఇచ్చినటువంటి రీపోలింగ్ పైన అధికారులు గాని ఎలక్షన్ కమిషన్ గాని ఎవరు గాని స్పందించలేదు. తెలుగుదేశం పార్టీకి సానుకూలంగా ఎక్కడుందో అక్కడుండే చోట బీజేపీ పార్టీతో వైఎస్ఆర్ పార్టీ తొత్తుగా వ్యవహరిస్తూ ఈరోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా రీపోలింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 5 బూతుల్లో కూడా రీపోలింగ్ కి మేము సర్వశక్తులా రెడీగా ఉన్నాం. మాకు ఒకటే, మొన్న జరిగిన ఓటింగ్ సరళీ కంటే కూడా ఇంకా మేము పెంచుకుంటాం. మాకు మా కార్యకర్తలు, మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలే మాకు శ్రీరామ రక్ష. దీని ద్వారా మేము ఎంతటికైనా పోరాడతాం. దీన్ని మాకు రాని రీపోలింగ్ కేంద్రాలపైన కూడా మేము ఏం చేయాలని కూడా మా నాయకులు, రాష్ట్ర పార్టీ నాయకులు సంప్రదిస్తున్నారు. వాళ్ళని అనుసరించి 23 मई को लोकसभा और आंध्र प्रदेश असेंबली के वोटों की गिनती होना है। इलेक्शन कमीशन के अलावा तमाम सियासी पार्टियां भी काउंटिंग की तैयारियों में हैं। YSRCP की जानिब से पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स के लिए बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस प्रोग्राम में YSRCP के सीनियर लीडर विजय साई रेड्डी, U वेंकटेश्वरलू और दीगर लीडर मौजूद रहे। सदर YSRCP जगनमोहन रेड्डी कड़पा में तीसरे दिन भी मसरूफ रहे। जगनमोहन रेड्डी ने कड़पा में प्रजा दरबार का इनेकाद किया। जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी लीडरों, कारकुनों और अवाम से भी यहां मुलाकात की है।
वहीं साबिक मरकजी वजीर साई प्रताप रेड्डी ने दोबारा कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के रियासती सदर एन रघुवीरा रेड्डी ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर साई प्रताप रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मकसद रियासत के कमजोर तबकात को ताकतवर बनाना है। रघुवीरा रेड्डी ने कहा कि साई प्रताप के पार्टी में शमूलियत से पार्टी कारकुनों में जोश आएगा। సొంత ఇంటికి నేను రావటం అన్నది చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. కొన్ని వందల మంది ఫోన్లు చేసి మంచి పని చేసినారన్నా మీరు అని చెప్పటం నిజంగా ఒక రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎనలేని సేవ చేసిన వాడిని నేను. మరి కారణాలు మీ అందరికీ తెలుసు. జీవితంలో ప్రతి మనిషి ఒక తప్పు చేస్తాడు అని అనుకుంటాను, కానీ ఎందుకో నేను ఒక తప్పు చేశాను. మళ్ళీ ఆ తప్పుని సరిదిద్దుకొని నా సోదరుడు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు తులసిరెడ్డి గారు, నేను ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నా. ఈరోజు రఘువీరారెడ్డికి కానీ మణియప్పన్ గారికి కానీ తులసిరెడ్డికి కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పెద్దలందరికి కానీ నియోజకవర్గంలో రాజంపేట పార్లమెంట్లో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. आंध्रा यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट जारी कर दिए गए। आंध्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव ने 14 मुख्तलिफ कोर्सेज से मुतालिक ये रिजल्ट जारी किए, जो कि 9 मई को यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन की क़यादत में मुनक़िद किए गए थे। साइंस कोर्सेज के जियोलॉजी शोबे में अब्दुल लतीफ 91 निशानात हासिल करते हुए टॉपर रहे। उधर आर्ट्स कोर्सेज में 86 निशानात के साथ वासक गणपति राव टॉपर रहे। विजयवाड़ा में कौमी यौम डेंगू के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज ने शिरकत की। उन्होंने जिले को डेंगू से पाक बनाने की आवाम से अपील की। हर जुमे को ड्राई डे मनाने और मच्छरों से बचने की तलकीन की गई। इस मौके पर एक पोस्टर का भी रस्मी इजरा किया गया। రిపోర్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఈ 15 హాట్స్పాట్స్లో ఎక్కువగా ఇంకా చర్యలు తీసుకొని ఎక్కడైతే మనకు రిపోర్ట్ అయిందో అక్కడ ఏరియా మొత్తము ఈ చర్యలన్నీ యాంటీ లార్వల్ మెషర్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసి ముందుకెళ్లడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఈరోజు ఈ జాతీయ డెంగ్యూ దినోత్సవ సందర్భంగా, నివారణ దినోత్సవం సందర్భంగా దోమలు కుట్టకుండా చేద్దాము, డెంగ్యూ వ్యాధిని నివారిద్దాము అనే ఒక. वहीं गुंटूर में भी नेशनल डेंगू डे के मौके पर रैली निकाली गई। इस मौके पर आवाम में डेंगू से बचने के लिए अपील की गई और डेंगू से मुतालिक जानकारी फराहम की गई। మన చుట్టుపక్కల ఉండే విషయాలన్నింటినీ మనం జాగ్రత్త చేసుకుంటే గనక ఫ్రైడే డ్రై డే పాటిస్తూ ఖచ్చితంగా మనం ఈ దోమల నుంచి, ఈ దోమకాటు నుంచి నిర్మూలించవచ్చు అనే సందేశాన్ని అందిస్తూ మేము డెంగీని నెక్స్ట్ అసలు లేకుండా చేయటానికి 100% తగ్గించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం। मछलीपट्टनम बस डिपो के मैनेजर और ड्राइवर्स के दरमियान मसाइल को हल करने के मामले ने तनाज़े का रूप ले लिया है। ड्राइवर्स ने मैनेजर पर सख्त रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाया और बसों को रोक दिया। ड्राइवर्स ने डिपो मैनेजर को मसाइल का हल जल्द न करने पर हड़ताल करने की भी धमकी दी है। वहीं मछलीपट्टनम बस डिपो मैनेजर सत्यनारायण मूर्ति ने आरटीसी में किराए के बसों के ड्राइवर्स की जानिब से इख्तियार किए गए रुख पर कहा कि आरटीसी मुसाफिरों को परेशानी से बचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि मछलीपट्टनम डिपो से 50 ड्राइवर्स ने बसें ही रोक दी है। काकीनाडा में सेंट्रल ड्रग स्टोर में आतिशबाजी का हादसा पेश आया। आज सुबह की अवुलिन सातों में सेंट्रल ड्रग स्टोर के फार्मेसी भवन में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। लाखों रुपए की अद्वियात यहां तबाह हो गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला कृष्णा के जागियापेटा मंडल में तेज रफ्तार कार ने सफाई करने वाली खातून मुलाजमीन को कुचल डाला। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। मकामी अफराद ने बताया कि फ्लाईओवर पर सड़क की सफाई में मसरूफ मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके सबब एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक खातून की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई। इस हादसे में दीगर खवातीन जख्मी हुई हैं। कृष्णा जिले के कनकीपाड़ू मंडल में सड़क हादसा पेश आया। सड़क के किनारे खड़ी टिपर से निजी ट्रैवल की बस टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर के अलावा दीगर 3 लोग
जख्मी हुए। बस को टिपर से अलहदा करने के लिए बाकायदा क्रेन का सहारा लेना पड़ा। विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जाने वाली निजी ट्रैवल की बस सड़क के किनारे खड़ी एक टिपर से टकरा गई और ड्राइवर बस में फंस गया, जिसे क्रेन सर्विस की खिदमात हासिल करते हुए बाहर निकाला गया। हादसे में जख्मी लोगों को 108 एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिला विजयनगर में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रक्षक प्रोग्राम के तहत ऑटो ड्राइवर्स को शिनाख्ती कार्ड दिए जा रहे हैं। ऑटो में सफर करने वाली खवातीन और बच्चों को परेशान करने पर ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। जिला एसपी दामोदर ने ऑटो ड्राइवर्स को इस सिलसिले में हिदायत भी जारी कर दी है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।